बट मुझे बदबू वाली बदबू आ रही है। माँ शारदे के श्री पता है चढ़वी कौन वाली चार बदबू। प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना. A warm welcome to one and all present here on this virtual platform. We all are fortunate that this virtual platform has given us an opportunity to come together and understand many topics related to media education. The first webinar that was started on 2nd of October 2020 in the supervision of Professor Sanjeev Bhanawat, we could make out this journey successful and vibrant with rainbow colors with his continuous efforts. We completed 100 webinars on 25th of October 2023 within 3 years, irrespective of the fact that we knew that now almost people had shifted back to offline mode. But then with this webinar series, which started under the umbrella of Communication Today, which is a media bilingual quarterly journal, which was basically started by Professor Sanjeev Bhanawat's efforts only, and which is running in the 27th of its year, inclusive of 10 special issues which has come out with this journal on specific and special topics of media education itself. After the 100 webinars that we concluded under the umbrella of Communication Today, a beautiful amalgamation happened with Bharati Vidyapeeth under the supervision of Professor M.N. Hoda, Director Bharati Vidyapeeth, which is affiliated to Indraprastha University, New Delhi. This association is also bringing us together for 103rd. This is the third one with the association, but it's lovely to pronounce that it is the 103rd webinar, which we are conducting today on World Television Day. This topic itself, once again, with the efforts of both the eminent dignitaries out here, Professor Bhanawat and Professor Hoda. The topic is again, which is very much close to all of us minds and hearts. We'll be having Sri Nand Bharadwaji, we'll be having Dr. Brajesh Kumar Singh ji and Mr. Prabhakar Mishra to spread light and let us know what all they have got in their bags to deliver the information for all the participants that are here. This year, we have the theme for this World Television Day, that's accessibility. And we are fortunate to have all those dignitaries amongst us who will definitely enlighten us with their thoughts and with their ideas. Over to you, Professor Sanjeev Bhanawat, for the introduction of the theme of today's webinar. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी आपके इस प्रारंभिक उद्बोधन के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दिन प्रसारण की दुनिया का एक महत्वपूर्ण दिन है, जब वैश्विक रूप से 21 नवंबर को हम विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह दिन मात्र उपकरणों का उत्सव नहीं है, वरन इसके पीछे टेलीविजन का एक दर्शन जुड़ा हुआ है। टेलीविजन किस तरह से आम आदमी की रीच में पहुंचे और शिक्षा, मनोरंजन और उसके साथ जुड़े हुए जो उसके और उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख के हमने आज साहित्य और मीडिया के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे कुछ वरिष्ठ साथियों को और कुछ युवा साथियों को आमंत्रित किया है, जो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा डॉक्टर उषा ने नाम बताए, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री नंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और बहुत शीघ्र ही ज्वाइन करेंगे डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह और प्रभाकर मिश्रा जी, जो दिल्ली में 2 निजी चैनल्स के साथ
पिछले 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं। 21 नवंबर 1996 को यूएनओ ने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, टीवी फोरम पे एक इस तरह का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर के दिग्गज मीडिया के एकत्रित हुए थे, और उसी दिन की स्मृति में 2 दिन का वो आयोजन था। 21-22 नवंबर को 17 दिसंबर 1996 को यूएनओ ने दुनिया भर में विश्व टेलीविजन दिवस मनाने की घोषणा की। आइए इस अवसर को हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, और मैं अनुरोध करता हूँ भारतीय विद्यापीठ के निदेशक और आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर एमएन हुडा को। प्रोफेसर एमएन हुडा अभी हाल ही में दिल्ली प्रवास में, इनके संस्थान में जब एक कार्यक्रम में मैं भाग लेने गया, उन्होंने प्रस्ताव किया कि क्यों नहीं कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के साथ ये यात्रा एक साथ में शुरू की जाए, ताकि इस अकादमिक उपक्रमों का लाभ देश के विभिन्न अंचलों में व्यापक रूप से फैल सके। और इसका एक लाभ हमको ये हुआ कि इससे बहुत बड़ा व्यापक और विविध वर्ग हमारे साथ जुड़ सका। अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 102 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के अलग अलग अंचलों से, बल्कि देश के बाहर के भी कुछ मित्र यदा कदा हमारे साथ जुड़ते हैं। तो निश्चय ही ये जो हमारी एक विचार यात्रा है, ये एक सार्थक रूप ले पाएगी। आइए मैं अनुरोध करता हूँ प्रोफेसर हुडा से कि वो आप सभी का यहाँ स्वागत करें और अपनी बात कहें। प्रोफेसर एमएन हुडा। Am I audible? Yes, sir. Good evening, one and all. And at the outset, let me take this opportunity to pay my gratitude to all the 3 valued speakers who have very kindly agreed on the invitation extended by Professor Banawat and by us for making us to celebrate this day as World Television Day, which across the world people are celebrating. Dear friends, I also take the opportunity to welcome you all the participants from across the country and abroad in this 103 means 103वें नेशनल सेमिनार में, जो आज के दिन वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। जैसा प्रोफेसर बनावत ने कहा कि पिछले महीने सितंबर में जब हम मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि अगरचे मैं बनावत साहब को पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा था, जब से उन्होंने ये वेबिनार सीरीज शुरू की इन द बैकड्रॉप ऑफ द कोविड। आई आल्सो स्टार्टेड अ टेक्निकल वेबिनार सीरीज इन ड्यूरिंग द सेम पीरियड, May 2020, and then it was so appreciating that a person after superannuation from the university with this much of passion and commitment to disseminate knowledge, to connect people together, he is continuing this webinar series with almost no infrastructure and no logistic support available to him. He is spending money from his own resources. So I thought that this is an era in which it is said that either get networked or be ready to get perished. So I submitted my proposal, which Professor Banawat has readily agreed, and now this webinar media series is present. Collaboration with Communication Today, which is in itself celebrity publication known as the Lighthouse of Media Professionals and Bharati Vidyapith. So dear friends, I take this opportunity to welcome to all of you. Today's theme is World Television Day. We have invited Shri Nand Bhardwaj ji, former Senior Director, Darshan Jaipur, who has already joined. Dr. Brajesh Kumar ji, Group Editor, Integration and Convergence Network 18 will be joining soon. And likewise, Mr. Prabhakar Mishra, who is National Bureau Chief of News 24, he will be also joining soon and will be sharing the experience that how television in last almost 27 years have transformed since 1996. The kind of the introduction of the color TV came into the India, and that was a coincidence that when color TV came to India in the same year, this World Television Day was announced by United Nations General Assembly, as Professor Banawat has already said, that on November 21 and 22, 1996, United Nations hosted a big function, and that was the first hosting of the World Television Day. People across the world have realized that television is going to have a very multi-dimensional influence in our day-to-day life, and our overall decision-making process is affected. Decision-making process is influenced
with the help of the information available or information disseminated via television. So this television has a potential to educate people, inform people, and also to misguide people if people start misguiding. So this is up to the people who are involved in this, that they have to be so careful that what information should go for the people or not, because ultimately it works like opinion shaping. So if we wanted to shape opinion in a right direction, it will be shaped in the right direction. Accordingly, the content should be shown. And of course, in many of the countries, many censor mechanisms are available, many ethical practices are available. In some or other way, this is also spoiling our society. But nonetheless, whichever technology comes, that has both the sides, both the faces. So we must believe in the good side of the technology and take advantage of it. Dear friend, I once again take this opportunity to pay my gratitude even to all the participants who have joined for this webinar and is part of this celebration which we are celebrating. There could not have been a better set of speakers which other than what we have invited today. So let's understand to which extent television has influenced our day-to-day decision-making process, to which extent it has transformed life, and understand one mobile and second television. And now television also is being watched now on mobile. So these are such technologies which has become the part of our life. So thank you so much. Our next webinar is going to happen on 26th to celebrate Samvidhan Divas. So कहीं न जाए, जुड़ते रहिए, और हमेशा की तरह मैं ये कहता हूँ कि अगले डेट पे एक नए टॉपिक के साथ मींस 26 नवंबर को एक नए टॉपिक संविधान दिवस सेलिब्रेट करने के लिए हम फिर मिलेंगे, फूलों की तरह फिर खिलेंगे, अगले दिवस पे हम फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल वेयरएवर यू आर. कीप लर्निंग डिस्पाइट डिसरप्शंस. ओवर टू यू बनावल सर. चलिए, धन्यवाद हुडा साहब. ये सही है कि आपने एक प्रस्ताव के माध्यम से हमारी इस वैचारिक यात्रा को गतिशील किया है और अपने कॉलेज के सारे संसाधन इस अकादमिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमें उपलब्ध कराए हैं. और अपनी व्यस्तताओं के बीच, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था, लेकिन जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस नाम से आप प्रकाशित कर रहे हैं, जो स्कोपस में भी इंडेक्स किया गया है और देश दुनिया में शोध आलेखों के लिए जाना जाता है. तो इस आईटी का किस तरह से आने वाले समय में इसमें संभावनाएं निहित हैं, इसकी चुनौतियां हैं, तो एक आपने एक तरह अलग जगाई है. तो मुझे लगता है कि जब दो इस तरह के अकादमिक उपक्रम साथ जुड़ते हैं तो निश्चय ही उसके सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे. इसके पूर्व के हम आगे बढ़ें, जैसे कि हमारी परंपरा है, हम हमारे अतिथियों का ई बुके से स्वागत करते हैं. प्रियंका जी से मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि अभी हमारे साथ केवल नंद भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, तो उनका ई बुके से स्वागत करें. प्रियंका जी जो इसकी कन्वीनर है हमारे आयोजन की. जी. So, बदलते परिवेश में बुके ई बुके हो गया. हम फ्लावर तोड़ना पसंद नहीं कर रहे, इस वजह से हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे. जैसे टेलीविजन घर बैठे देश विदेश के किसी भी कोने से, रिमोट प्लेस से हम तक खबरें पहुंचा देता है, तो हम भी दूर बैठे इलेक्ट्रॉनिक बुके से अपने मेहमान का स्वागत कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. चलिए, देखिए किस तरह से दुनिया बदल रही है और यही बदलाव हम टेलीविजन के क्षेत्र में भी देखते हैं. एक दौर था जब हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि टेलीविजन यूं तो 1924 में 1924 में आ गया था, जब एक स्कॉटिश इंजीनियर केवल 21 साल के एक युवक ने टेलीविजन का आविष्कार किया 1924 में, जॉन बेयर्ड ने. और 1928 तक तो वो कलर्ड ट्रांसमिशन की शुरुआत एक तरह से हो गई थी. तो उस दौर में देखिए आप, इतना लगभग एक शताब्दी पुरानी बात होने जा रही है. उस दौर में जब टेलीविजन की शुरुआत हुई, हमारे देश में जब 1959 में आया, मुझे ध्यान है हमें लग्जरी लगती थी. और बाद में जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें डिबेट के विषय दिए जाते थे, और उस समय हम टेलीविजन को बुद्धू बक्सा बोलते थे, इडियट बॉक्स. तो उस इडियट बॉक्स की जो हमारी यात्रा है, अब देखिए वो टेलीविजन जो लग्जरी माना जाता था, इडियट बॉक्स माना जाता था, आज हमारे जीवन संस्कारों में कितनी आत्मीयता के साथ घुल मिल गया है. आज उसके बिना जीवन की कल्पना लगभग असंभव है. लेकिन साथ ही ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म में
नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। वो टेलीविजन जो हमारी टेबल पे रहता था, एक इतना मोटा उसका सारी शेप होती थी, वो टेलीविजन वो जो हमारी टेबल है वहां से उठ करके दीवार पे लटक गया, उसकी स्क्रीन पतली होती चली गई। और अब तो हमारा जो ये टेलीफोन है, स्मार्टफोन्स है, इसमें वो जो टेलीविजन है वो एक तरह से प्रवेश कर गया है। तो देखिए दुनिया किस तेजी से बदलती जा रही है और एक नई क्रांति प्रसारण के क्षेत्र में जन्म ले चुकी है। आज देश दुनिया में होने वाली हर घटना को हम उस पर्दे पर लाइव देख लेते हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था कि ये जो अपना मैच था फाइनल का ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑल टाइम रिकॉर्ड दुनिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो हॉटस्टार पर जो ये टेलीकास्ट किया गया था, वो ये दावा करते हैं कि 5.9 करोड़ लोगों ने उस चैनल पर उनके उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस मैच को देखा है। आज किस तरह से अलग अलग जो इस ऐतिहासिक इवेंट्स हैं उनको हम पर्दे पर सीधे देख पाते हैं। निश्चित रूप से इसने प्रिंट मीडिया और दूसरे जो माध्यम है उनके सामने भी एक चुनौती खड़ी की है। तो एक तरह से ये दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से टेलीविजन के माध्यम से पारस्परिक सद्भाव, भाईचारे और सांस्कृतिक सह अस्तित्व को बनाने के लिए काम कर सकते हैं। भारद्वाज जी विस्तार से बताएंगे। आज दूरदर्शन ने तो अपने कितने चैनल शुरू कर दिए हैं और इवन उनका जो पूरी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उस पर केंद्रित चैनल भी दूरदर्शन ने शुरू किया है। तो जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की हम बात करते हैं उस पर हम पिछले 3 वर्षों में समय समय पर बात करते रहे हैं। तो जिस तरह के ये प्रयोग किए हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में देश की जनता को जागरूक करने के लिए, जैसा हुडा जी कह रहे थे कि पब्लिक ओपिनियन को तैयार करने के लिए जिस तरह का वो काम कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर, स्वयं यूएन ने अपना यूएन वेब टीवी शुरू कर दिया है जहां आप यूएन असेंबली में हो रही जो बहस है उनको लाइव देख सकते हैं। तो दुनिया में जिस प्रकार की एक विचार क्रांति बन रही है उसके साथ हमारा सीधा एक्सेस हुआ है। तो मनोरंजन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में के साथ साथ ये एक विचार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। निर्भर करता है जिनके हाथ में ये कैमरे हैं, जिनके हाथ में ये प्रसारण है, वो इसका किस तरह से उपयोग करते हैं। तो आज इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ प्रसारण की दुनिया के कुछ दिग्गज हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी जो एक्सपर्ट के रूप में हैं वो भी हमारे साथ आ गए हैं। तो मैं प्रियंका जी से कहूंगा कि अपन आगे बढ़े, उसके पहले वो उनका भी ई बुके से स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रियंका जी। स्वागत है डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये इलेक्ट्रॉनिक बुके की शुरुआत परिवेश का नतीजा है। धन्यवाद। बिना फूल तोड़े दूर से खुशबू का सुगंध ले। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय नंद भारद्वाज जी को। हमारे शहर जयपुर से आप जुड़े हैं और साहित्य और मीडिया में आपकी बहुत लंबी पारी रही है। बाड़मेर के एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ जहां पढ़ने पढ़ाने की कोई उस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन अपने पिता से संस्कार प्राप्त हुए और पढ़ने के प्रति आपके मन में कहीं एक भाव जागा। लेकिन एक ऐसे संसाधन विहीन क्षेत्र में पढ़ाई करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रारंभिक दौर में ही अपनी प्राइमरी शिक्षा के बाद ही पढ़ने के लिए वो कई किलोमीटर दूर बाड़मेर में जाते हैं और वहाँ रहते हुए उनको जिस तरह का उन्होंने माहौल देखा, एक तरह से वहीं साहित्यिक संस्कार भी उनके जीवन में या उनकी जीवन शैली में कहीं अंकुरित होने लगे। और नंद भारद्वाज जी ने साहित्य के क्षेत्र में एक तरह से पदार्पण किया। आपने हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में समान अधिकार से विपुल मात्रा में लिखा है और जिसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको मान्यता मिली है। तो एक कवि, कथाकार, समीक्षक और संस्कृत कर्मी के रूप में आप पूरे देश में जाने जाते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, संवाद, अनुवाद आदि विविध विधाओं में आप निरंतर लेखन और प्रकाशन कर रहे हैं। साहित्य के साथ साथ मीडिया संबंधी भी आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 4 दशक से अधिक समय तक आप इन माध्यमों के साथ जुड़े रहे। राजस्थानी में आपके प्रमुख कविता संग्रह है अंधार पख और आगे अंधारी, तौर अर दायरो तथा नवी कविता रा आज अर आगम आलोचना,
साहमी खुलतो मारग, ये आपका उपन्यास है जिसको साहित्य अकादमी से राजस्थानी भाषा में श्रेष्ठ कृति के रूप में भी पुरस्कार मिल चुका है। बदलती सरगम कहानी संग्रह है और हिंदी में झील पर हावी रात, हरिदूब का सपना। हरिदूब का सपना को के बिरला फाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार से, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है देश के ये, उससे भी आपको सम्मानित किया गया है। आदिम बस्तियों के बीच और चयनित कविताएं, ये कहानी संग्रह है। आपसदारी और आवाजों के आसपास आपके कहानी संग्रह है। संवाद निरंतर तथा अपने समय के साक्षी, ये संवाद संग्रह है। साहित्य परंपरा और नया रचना कर्म और राजस्थानी विरासत का वैभव आलोचना कृति है। संस्कृति, जनसंचार और बाजार, ये आपका मीडिया पर निबंधों का संग्रह है जिसे भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के भारतेंदु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थानी पत्रिका हरावल का आपने संपादन किया है। राजस्थान साहित्य अकादमी से आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने आपके पुस्तकें प्रकाशित की हैं तथा राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थानी साहित्य अकादमी आदि से भी आपकी कृतियां पुरस्कृत हो चुकी हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी ने नरोत्तम दास स्वामी गद्य पुरस्कार से आपको सम्मानित किया और नरोत्तम दास स्वामी से संयोग से मैंने उनके दर्शन किए और मेरे पिताजी के वो शोध निर्देशक भी थे और उनके नाम से जब आपको पुरस्कार मिला तो नेचुरली मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। और केंद्रीय साहित्य अकादमी से आपको पुरस्कार मिला। दूरदर्शन पर जब आप सेवारत थे उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला आपने शुरू की थी कि जो हमारी क्लासिकल कृतियां हैं, साहित्य उपन्यास और कहानियां, उन पर केंद्रित कुछ एपिसोड्स तैयार किए गए थे विभिन्न भाषाओं में। तो उस योजना के साथ आप बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और दूरदर्शन के माध्यम से साहित्यिक चेतना को जगाने में आपका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके लिए भी आपको पुरस्कृत किया गया। दूरदर्शन विशिष्ट सेवा पुरस्कार से भी आप सम्मानित किए गए और सूर्यमल मिश्रण शिखर सम्मान से भी आप सम्मानित किए गए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से हम सब लोग परिचित हैं। आज इस आयोजन ने दुनिया भर में अपना एक विशेष पहचान बनाई है। इस फेस्टिवल के रीजनल एडवाइजर के रूप में भी आप जुड़े हुए हैं और बिरला फाउंडेशन के जो बिहारी पुरस्कार की चयन समिति है उसमें भी आप लगभग 2015 से लगातार जुड़े हुए हैं। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में लगभग 4 दशक का आपका अनुभव और इन माध्यमों में रहते हुए संयोग से मेरे विभाग के साथ भी आपका बहुत गहरा संबंध रहा है। मेरे अनेक अकादमिक आयोजनों में मुझे आपका मार्गदर्शन मिला है और दूरदर्शन में जब आप थे निदेशक तब मुझे भी इनकी कई जो समितियां हैं उसमें उन्होंने मौका दिया उस पूरे माध्यम को समझने के लिए। तो एक बहुत लंबा अनुभव। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय नंद भारद्वाज जी से कि वे इस अवसर पर इस प्रसारण की दुनिया के जो आपके अनुभव हैं और भविष्य की जो चुनौतियां संभावनाएं हैं उस पर कुछ विचार हमारे साथ साझा करें। आदरणीय भारद्वाज जी। सर माइक आपको म्यूट करना पड़ेगा जी। आ गया है मेरा माइक का, हो सकता है मुझे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संजीव भानावत, डॉक्टर हुडा, उषा जी और तमाम मेहमान जो इस वेबिनार में भाग लेंगे उन सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ ने जो पिछले सालों में मीडिया के क्षेत्र में काम किया है वो निश्चय ही सराहनीय है, वंदनीय है। मीडिया में जो काम करते हैं वो तो उसके भीतर पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, लेकिन जनता के बीच जो लोग मीडिया की साख बनाते हैं उसमें संजीव भानावत जैसे लोगों का, उनके विभाग का और ऐसी और तमाम यूनिवर्सिटी जो है जो ये काम कर रही हैं वो एक तरह से हमारे ही काम को विस्तार दे रही है। मीडिया से जुड़ना मेरे लिए तो सुखद सुअवसर था ही, लेकिन मुझे लगा कि इस माध्यम से मैंने जितना सीखा उसकी एवज में जितना मुझे और देना चाहिए था, मुझे लगा कि और मुझे समय मिलता तो शायद मैं और कर पाता, लेकिन इसका विकल्प मेरे पास एक और भी था जो साहित्य के माध्यम से मैं काम कर पाया। और साहित्य को और मीडिया को मैं तो बहुत करीब से एक दूसरे को जोड़ करके देखता रहा हूँ। इसीलिए अगर वो जो भारतीय कालजी कृतियों का अगर सीरीज मेरे माध्यम से देख रेख में तैयार हो पाई और बहुत कम समय में 1.5-2 साल के छोटी सी अवधि में वो पूरी सीरीज तैयार हुई। इसी तरह से जैसे
हमारे राजस्थान केंद्र से भारतायन जैसी सीरीज तैयार हुई, तो वो 13 एपिसोड दूरदर्शन के सारे केंद्रों से दिखाए गए, उसके सारे चैनल्स पर उसका प्रसारण हुआ। संयोग से मेरा रेडियो से भी बहुत लंबा ताल्लुक रहा है। मैं शुरुआत के 17 साल मैंने आकाशवाणी में ही व्यतीत किए। तो इस माध्यम से जो लोक सेवा का एक बड़ा काम होता है और जिसके लिए ये प्रतिबद्ध माना जाता है। तो इस माध्यम की शुरुआत यूं तो आपने कहा कि बहुत पहले, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका में 1938 में ये टीवी आ चुका था। 1936 में बीबीसी ने इसका शुरुआत कर दी थी और 15 सितंबर 1959 से हमारे देश में भी टेलीविजन दूरदर्शन के रूप में प्रसारण आरंभ कर चुका था। लेकिन जिस गति से इसका विकास होना चाहिए था, एक तो जब तक ये सैटेलाइट वाली प्रोसेस जब तक शुरू नहीं हुई तब तक ये उतना प्रभावशाली माध्यम के रूप में काम कर नहीं सका। 1982 के आसपास जब इनसेट 1B का सफल प्रक्षेपण हुआ और उसके माध्यम से कुछ और बेहतर ढंग से हम काम करने की स्थिति में आए, फिर टेलीविजन रंगीन टेलीविजन के रूप में भी आया और हमारे देश में तो ये लोक प्रसारण माध्यम के रूप में ही वर्षों तक काम करता रहा है। 90 तक तो और कोई प्रतिस्पर्धा में था भी नहीं। बाद में भी हालांकि सब लोग कहते हैं कि दूरदर्शन इस प्रतिस्पर्धा में कहाँ खड़ा है, तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि प्रतिस्पर्धा तो हमारी लोक प्रसारण के क्षेत्र में ही हो सकती है। अगर कोई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में आता है तब तो हम एक प्रतिस्पर्धा भी महसूस करें। अब प्राइवेट चैनल जिनका उद्देश्य ही भिन्न है, वे अपने व्यवसाय के लिए आते हैं, वे अपने दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आते हैं, तो उनका लोक प्रसारण माध्यम से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। और वैसे भी हमारे देश की जो जिस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चीले माध्यम सफल हो भी नहीं पाते। खर्चीले भी और उनके अपनी भाषा में कम्युनिकेशन की दृष्टि से भी जो माध्यम बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, वही अपनी साख भी बनाते हैं, जड़ें बनाते हैं। तो उस लिहाज से रेडियो और दूरदर्शन या टेलीविजन जिसको कहें, उसकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैसे मैं चाहे कितने भी नए माध्यम आते हो और लोग कहते हैं कि साहब अब ये माध्यम आ गया है तो अब बाकी माध्यमों की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है, इस बात को मैं कम मानता हूँ, क्योंकि सभी माध्यमों की अपनी भूमिका है। चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे वो ऑडियो मीडियम को रेडियो रहा हो या दूरदर्शन ने ऑडियो विजुअल माध्यम के रूप में काम किया हो, सबका अपना अपना ऑडियंस है, अपना अपना क्षेत्र है, अपनी प्रकृति है उनके काम करने की, और उसका प्रभाव भी उसी तरह से ग्रेड किया जाता है। टेलीविजन के साथ एक अच्छी बात ये रही, या रेडियो के साथ अच्छी बात ये रही कि इसके जो मूल 3 उद्देश्य हैं, सूचना, शिक्षण और मनोरंजन, इसमें सूचना और शिक्षण को ज्यादा महत्व दिया गया शुरू से। और आप समझिए कि ये देश जो कृषि प्रधान देश माना जाता था, उस कृषि को सबसे ज्यादा जो बल मिला है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वो रेडियो और दूरदर्शन से मिला है। जितना पॉपुलर हमारे कृषि कार्यक्रम हुए और बाद में तो कृषि चैनल भी शुरू हो गया, जो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था की मूल धुरी है हमारी कृषि, उसको विकसित करना, उन किसानों को उनकी सेवाओं में मदद करना, ये माध्यम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उसने निभाई है। इसके अलावा शिक्षा क्योंकि एक ऐसा एक बहुउद्देशीय फॉर्मेट है जिसको आप केवल स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं कर सकते। शिक्षण बहुत बड़ा एक अवधारणा है और माध्यम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये शिक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये बात हमारे सारे विशेषज्ञ शुरू से मानते रहे हैं। इसलिए जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो वो चाहे हेल्थ एजुकेशन है, स्वास्थ्य के बारे में हम जितना सिखा सकते हैं, लोगों को जागरूक बना सकते हैं, उतने हॉस्पिटल्स वो काम नहीं कर सकते। दूरस्थ शिक्षा में भी ये माध्यम जितना बेहतर ढंग से अपनी भूमिका निभा सकता है और दूसरा कोई माध्यम नहीं निभा सकता। ठीक है, आपने क्लास में बच्चों को बिठा करके उनको जितना आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो एक सीमित क्षेत्र तक उसका प्रभाव जाता है। लेकिन
रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से, जैसे आकाशवाणी में पहले खुला आकाश एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट होते थे, बाद में तो ज्ञानवाणी आकर के और उस तरह का पूरा चैनल ही विकसित हो गया। आज भी दुनिया के जो तमाम चैनल्स हैं उनमें जो शैक्षणिक प्रक्रिया से जुड़े हुए बहुत सारे चैनल हैं, उनकी अपनी अहमियत है। चाहे वो एनुअल चैनल हो, चाहे डिस्कवरी हो, चाहे हिस्ट्री चैनल हो, ये तमाम शिक्षा के चैनल हैं। इनके माध्यम से हम जितना व्यापक ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं वो किसी और माध्यम से नहीं कर सकते। इस दृष्टिकोण से टेलीविजन की बड़ी भूमिका है वैश्विक स्तर पर। तो ये जो काम हुआ है, अब बच्चों में भी जो एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश, ठीक है, ये वैसे तो रेडियो दूरदर्शन की क्या है कि वो जो टारगेट ऑडियंस सर्विस हुआ करती है वो बच्चों के लिए भी कार्यक्रम करते हैं, महिलाओं के लिए भी करते हैं, किसानों के लिए भी करते हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा चैनल एक ही प्रकृति का हो तो उसमें ये दूसरे सारे फॉर्मेट है वो भी समाहित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो किसान चैनल है तो उसमें मनोरंजन नहीं होगा, वो भी होगा, उनकी कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन फोकस जो है वो मूल कृषि प्रक्रिया पर रहेगा। लोगों को, किसानों को शिक्षित करने पर रहेगा, उन्हें बेहतर कृषि तकनीक से परिचित कराने पर रहेगा, और जो कृषि के विशेषज्ञ हैं उनके साथ लगातार उनका संवाद बना रहे ताकि वो चैनल अपने उद्देश्य में पूरा हो सके। यही माध्यम दूसरे तमाम क्षेत्रों में काम करता है। साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए जो तमाम हमारे पक्ष हैं उन सबको भी एक आधार देने में हमने तो, बल्कि दूरदर्शन ने तो डीडी भारती जैसा एक पूरा संस्कृति पर केंद्रित चैनल ही शुरू किया है। उसके माध्यम से बहुत काम हुआ है, हमारा आर्काइव डेवलप हुआ है। इस देश में संस्कृति के जितने पक्ष है उन पर जितना काम हुआ है, म्यूजिक के क्षेत्र में हुआ है, नाटक के क्षेत्र में हुआ है, तमाम दूसरे जो लोक विधाएं हैं उन लोक विधाओं को संरक्षित करने की जरूरत है। जो चीजें लुप्त हो रही हैं उन्हें बचाने की जरूरत है। यहाँ तक कि हमारे जो पौराणिक हमारा साहित्य रहा है उसे कैसे लोगों के बीच में, लोक के बीच में लोकप्रिय बनाया जाए, इसके माध्यम से जितना बड़ा काम रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से हुआ है आप सब उससे भली भांति परिचित है। आज शायद ही कोई भारतवासी या दुनिया का कोई नागरिक होगा जो इन तमाम बड़े कार्यक्रमों से, हमारे पौराणिक आख्यानों से पर आधारित जो कार्यक्रम है उनसे परिचित ना होगा। एक उनके माध्यम से भी शिक्षण हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि वो हमने उनको उन्हीं पीरियड तक या उन्हीं कालक्रम तक सीमित रख करके किया है, उन्हें अद्यतन बनाया है। उन्हें उसमें अगर महाभारत बना है, रामायण बना है, तो आप उसकी सारी स्क्रिप्ट को चेक करिए, आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें हमारे आज के जीवन से जुड़ी हुई है, बहुत सारी शिक्षाएं हम वहां से ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से एक व्यापक जागरूकता पैदा करने में, इतने विविधता वाले देश को एक बनाए रखने में इस माध्यम की जितनी बड़ी भूमिका है, अहमियत है, इस सबको आप मुझसे बेहतर जानते हैं और वो आवश्यकता अब भी बनी हुई है। शैक्षणिक दृष्टि से भले ही आंकड़े अब थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं और लग रहा है कि नहीं बहुत लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र के सामने चुनौतियां खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सिखाने की, सीखने की जरूरत है। एजुकेशन के माध्यम से और व्यापक काम करने की जरूरत है। संविधान और लोकतंत्र की जो बुनियादी धारणाएं हैं उनको बेहतर ढंग से जब तक आप समझेंगे नहीं, लोकतंत्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि उसका तमाम जो नागरिक है वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। वो ये भाव जब तक उसमें नहीं पैदा होगा कि इस देश के लोकतंत्र का असली कस्टोडियन वो है, असली संरक्षक वो है, उसके माध्यम से ही ये सारी सरकारें चलती है, उसी के माध्यम से सारा प्रशासनिक ढांचा बनता है, उसी के माध्यम से सारी योजनाएं होती है। यानी संबोधित वो है, उसके माध्यम से जो काम हो रहा है उसे जागरूक बनाया जाए, और जागरूक बनाने में ये माध्यम बहुत बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि वर्ल्ड टेलीविजन भी इस दिशा में सोचता है, सोचना चाहिए, क्योंकि हम ही जागरूक है ऐसा हम दावा या ऐसा वहम हम नहीं पालते। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बीबीसी ने हमसे बहुत कुछ सीखा है, अमेरिका का जो टेलीविजन है वो भी विकसित है, लेकिन इन सब के बीच में मानवीय दृष्टिकोण से जो एजुकेशन और विकसित होनी चाहिए, विज्ञान को भी मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे
विध्वंसकारी जो जो प्रक्रियाएं बन रही है, उन सब के पीछे मनुष्य को महत्व देने वाली सोच बनी रहनी चाहिए, और ये सोच ये माध्यम बनाएंगे। लोगों का मनोबल उस तरह से हम विकसित करेंगे कि वो दबाव डाल करके और लोकतंत्र के माध्यम से उन सबको एक दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ये काम इन माध्यमों से हो, दूरदर्शन के माध्यम से हो, टेलीविजन की तमाम चैनलों के माध्यम से हो, तब वे अपने उद्देश्य में सफल है, तब वे जनता को संबोधित करने लायक बनेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप बेशक व्यावसायिक चैनल के रूप में कमा लीजिए, लेकिन समाज में आपकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं मानी जाएगी, बल्कि हो सकता है कि नकारात्मक मानी जाए, जो आपको आगे आने वाले समय में जवाब देने में मुश्किल पड़े। तो मेरा ख्याल है कि सब चैनलों को और सब मीडिया से जुड़े हुए लोगों को इन बातों को मूल रूप से ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आप सब इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत आभार आपका। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सार्थकता उसी में है जब वहां का नागरिक जागरूक हो, और उसको जागरूक करने में इन संचार माध्यमों की, विशेषकर टेलीविजन की अपनी एक विशेष भूमिका है, जिसकी ओर आपने इंगित किया, और पूरे उसके ऐतिहासिक क्रम को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए आपने इस बात पर बल दिया कि दूरदर्शन के माध्यम से जो लोक प्रसारण सेवाएं हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है। वह देश के अलग अलग वर्गों के कल्याण के लिए जिस तरह से प्रयत्नशील है, उसी में एक तरह से उसकी सार्थकता है। हर माध्यम की अपनी चुनौतियां हैं, हर माध्यम की अपनी संभावनाएं हैं, और समय समय पर उसमें उतार चढ़ाव कहीं न कहीं आता रहता है, लेकिन मूल रूप से उनका अस्तित्व या उनकी जो सार्थकता है वो प्राय बनी रहती है। तो आइए अब हम सुनते हैं न्यूज नेटवर्क 18 के डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह को। नेटवर्क 18 देश का एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि नेटवर्क है, जिसमें न्यूज और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो समाहित हैं। एक ग्लोबली, वैश्विक रूप में इस नेटवर्क ने अपनी पहचान बनाई है। टेलीविजन, डिजिटल, प्रिंट आदि विविध क्षेत्रों में इसकी अपनी एक पहचान है, और डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग एडिटर, एक ग्रुप एडिटर हैं इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस। यूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह का देश के कई प्रमुख चैनल्स के साथ जुड़ाव रहा है। एबीपी न्यूज नेटवर्क, टीवी टुडे नेटवर्क, जी मीडिया इत्यादि के साथ आप जुड़े रहे। एक प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर के साथ साथ आपका अकादमिक जगत से भी विशेष जुड़ाव रहा है। कम्युनिकेशन में आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, और देश के अनेक प्रमुख संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप से भी आप जुड़े हुए हैं। देश के प्रमुख जो विश्वविद्यालय हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से भी उन पाठ्यक्रमों को अपडेट करने में आपकी महती भूमिका रही है। संयोग से जयपुर का जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी आपका जुड़ाव है, और अहमदाबाद की दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, उसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। दिल्ली में आईआईएमसी के साथ आपका जुड़ाव है, और देहरादून का यूपीईएस, ये भी एक बहुत ही अपकमिंग जो यूनिवर्सिटीज है पिछले वर्षों में, जो उन्होंने पहचान बनाई है, उनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत सारे इस तरह के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं ब्रॉडकास्टिंग की, उनके साथ आपका जुड़ाव है। आप ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन BEA और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इन संस्थानों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आपका अनुभव भी बहुत व्यापक है अध्यापन के साथ साथ प्रसारण के क्षेत्र में। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से कि लगभग 2.5 दशक की आपकी जो ये पारी है शैक्षिक संस्थानों की और मीडिया हाउसेस की, इनके साथ जो कुछ आपका अनुभव रहा है वो हमारे साथ साझा करें, और भविष्य की संभावनाओं को, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप महसूस करते हैं आने वाले दौर में टेलीविजन, वर्ल्ड टेलीविजन डे के उस अवसर पर डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह। धन्यवाद डॉक्टर भानावत, डॉक्टर हुडा, श्री नंद भारद्वाज जी, और इस वेबिनार में मौजूद
तमाम प्रबुद्ध लोग, आज विश्व टेलीविजन दिवस है और 1996 से ये मनाया भी जा रहा है। जाहिर है ये मौका हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम अपने को एसेस कर सकें, रीअसेस कर सकें कि टेलीविजन एक मीडियम के तौर पर जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे लक्ष्य रहे, जो ग्रोथ है, जो कंजम्पशन का पैटर्न है, क्या उन सबके बीच कोई सामंजस्य है या नहीं। डॉक्टर भानावत ने शुरू में जो एक रूपरेखा रखी इस विश्व टेलीविजन दिवस की, जाहिर है यूएनजीए में जब ये प्रस्ताव आया था और फिर 1996 से जो है हर 21 नवंबर को इसको मनाने का फैसला किया गया, तो एक बुनियादी दर्शन जो उसके पीछे था वो ये था कि कैसे जो है आम आदमी को जो है एम्पावर करने में टीवी जो है एज ए मीडियम मददगार हो, उस दिशा में गंभीरता से विचार किया जाए। भारत के साथ मुझे लगता है कि यह खुशनसीबी रही कि हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके कुशल नेतृत्व में इस देश में टीवी कैसे जो है मास एजुकेशन का जरिया बने, इसकी एक तरह से कह सकते हैं शुरुआत हुई, बीजारोपण हुआ जब उन्होंने अमेरिकन ATS-6 सैटेलाइट के लिए अनुबंध किया नासा के साथ, और उनके देहांत के कुछ समय बाद ही, कुछ वर्षों बाद ही इसरो ने साइट परियोजना के तहत जो है इस देश के जो तमाम पिछड़े इलाके थे उनको जो है शैक्षणिक दृष्टि से उनका विकास, उनमें जन जागरण फैलाने का काम शुरू किया। चूंकि इतिहास जानना जरूरी है, भविष्य की राह भी वहां से मिलती है। श्री भारद्वाज ने अभी थोड़ी देर पहले जब वो चर्चा कर रहे थे कि कैसे ब्रिटेन में टीवी आया, कैसे अमेरिका में टीवी आया, अगर आप देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो है टीवी एज ए मीडियम जो है इवॉल्व हुआ। 32 के आसपास ब्रिटेन में ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई। 39 आते आते यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, वहां पर जो उस समय की जो दूसरी महाशक्ति जो कि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो इवॉल्व हुई अमेरिका, उसने उसको यूज करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर के कारण ही दुनिया के बाकी देशों में जाहिर है इसका विस्तार होने में थोड़ा समय लगा। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जाहिर है हमारा देश भी आजाद हुआ, और उसके कुछ वर्षों के बाद भारत में अगर कहें प्रिसाइज, अगर 12 साल बाद पहली बार 1959 में जो है इस देश ने टीवी को देखा। हालांकि बहुत गिने चुने लोग थे, महज कुछ 100 के अंदर थे इसी दिल्ली महानगर में, राजधानी के अंदर। 1965 एक लैंडमार्क है, जबकि आकाशवाणी के अंदर ही AIR टीवी नाम से जो है न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हुई। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जो तमाम युवा इस टेलीविजन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और सबसे पहले जब वो उनके मन की हसरत होती है वो एंकर बनना चाहते हैं, लेकिन इस देश की पहली टेलीविजन न्यूज एंकर जो विद्या रावत थी, शायद उनके बारे में ज्यादातर लोग अनजान होंगे, क्योंकि जो है उनका ऑफिशियल नेम तो कुछ और ही था, प्रतिमा पुरी के तौर पर जानी गई हो। वहां से जो शुरुआत हुई टीवी की, जो कि एजुकेशन से न्यूज की दुनिया में आया, और फिर उसके बाद से, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले श्री भारद्वाज ने कहा कि आज का जो टेलीविजन है और खासतौर पर प्राइवेट टेलीविजन न्यूज, वह हाईली कमर्शियलाइज्ड है, और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का भी विषय है कि यह जो हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा कर भी पा रहा है कि नहीं, या फिर किसी दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहा है। एक कॉन्ट्रास्ट ये है कि 1959 में जब टीवी पहली बार इस देश में आया, उसके 3 साल पहले जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर जो था आकाशवाणी, उसने अपने को कमर्शियलाइज करना शुरू किया विविध भारती के तौर पर। तो जाहिर है जो संभावनाएं थी अगर इस देश की इंडस्ट्री ने देखी, और खासतौर पे प्राइवेट इंडस्ट्री ने, तो उसकी सीख जो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर से ही ली। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के तौर पर जाहिर है आकाशवाणी, और फिर अगर हम कहें दूरदर्शन, जो कि 70 के दशक में अस्तित्व आया, अपने स्वतंत्र अस्तित्व के तौर पर AIR टीवी से दूरदर्शन बना, उसमें भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के तौर पर क्या उसकी भूमिका पूरी तरीके से आम जनता
की चिंताओं को परिलक्षित करने की थी, उनके बारे में सोच की थी, पार्टली सही है। पूरी तरह इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो जाहिर है कई सारी कमिटीज, और मुझे लगता है डॉक्टर भनावत अपने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को हमेशा ये पढ़ाया भी होगा कि चाहे वो चंदा कमेटी हो जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में आई और जिसने कि कैसे टेलीविजन को जो है इसका विस्तार किया जाए, रोचक ढंग से किया जाए। उसके बाद से बड़े प्रख्यात पत्रकार थे अपने वर्गीज साहब की अगुवाई में आकाश भारती कमेटी जो बनी और जिसके साथ अल्टीमेटली प्रसार भारती एक बॉडी के तौर पर आई ताकि जो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स को ऑटोनॉमी दी जाए, क्योंकि उसके पीछे की भी कहानी और मुझे लगता है उस दौर को आप लोगों ने महसूस किया है। 1975 का वो कालखंड इमरजेंसी का जो एक रिपोर्ट उस समय निकाली गई, AIR और दूरदर्शन जो है दोनों ने मिलकर करीब 50,000 बार सिर्फ जो है उस संक्षिप्त से 1 साल के पीरियड में जो है, चाहे श्रीमती गांधी हो या फिर उनके पुत्र संजय गांधी हो, उनको किस तरीके से विकास के पुरोधा के तौर पर चित्रित किया। 1984 से 89 का पीरियड भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जबकि दूरदर्शन को इस देश में राजीव दर्शन ही कहा जाता था। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह थी कि जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स का जो ग्रॉस मिसयूज था उसको दूर करने के लिए ही VP सिंह की जब सरकार आई, उन्होंने प्रसार भारती की दिशा में कदम बढ़ाया। आकाश भारती रिपोर्ट जो कि धूल फांक रही थी वर्षों से, उसको झाड़ पोंछ के जो है ऑटोनॉमी दिलाने की दिशा में लेके गया और फाइनली देवगौड़ा के समय में यह बॉडी फंक्शनल एक तरह से हुई। मुझे लगता है कि यही वो दौर था जबकि इस देश में प्राइवेट टेलीविजन ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू की। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि क्यों लोगों ने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर से ही लिया था। आपको ध्यान होगा जिस मैगी नूडल्स को आज की तारीख में बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, दूरदर्शन पर चलने वाला पहला विज्ञापन भी वही था। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, यहाँ तक कि डीडी ने जो प्राइवेट टेलीविजन जो कि एंटरटेनमेंट के तौर पर जो स्टार टीवी के तौर पर 91 में इस देश में आया, उससे चूंकि कम्पीट नहीं कर पा रहा था तो कमर्शियल टीवी और अपनी मोनेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए DD2 की शुरुआत हुई। हम सभी लोगों को पता है 95 वगैरह के आसपास से किस तरीके से इवॉल्व हुआ। जहां तक कमर्शियल एस्पेक्ट का सवाल है, प्राइवेट टेलीविजन का सवाल है, शुरुआत बड़ी छोटी सी हुई, चाहे NDTV के तौर पर नारायण ने एक संस्था की नींव डाली, या फिर अगर आप देखें 1995 का कालखंड जिसमें कि 2 महत्वपूर्ण प्राइवेट टेलीविजन न्यूज बुलेटिन जो कि पहली बार हो रहा था, चाहे टुनाइट हो जो कि NDTV प्रोड्यूस कर रही थी, या फिर आज तक जिसको कि SP सिंह जिसके मशहूर संपादक के तौर पे जाने गए, यह 2 अंग्रेजी और हिंदी के बुलेटिन जो है लॉन्च हुए। उसी के आसपास चैनल्स आए इस देश में, इसके कमर्शियल प्रीपोजिशन को लोगों ने देखना शुरू किया एंटरटेनमेंट के बाद से न्यूज को, और इसकी भी शुरुआत यूं रही क्योंकि आप ध्यान रखें कि जब गल्फ वार हुआ 91 का, उस समय जो है लोगों ने पहली बार CNN की कवरेज के जरिए जो है कितना युद्ध भी रोमांचक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, उसको महसूस किया। और दिल्ली से लेकर तमाम बड़े महानगरों में बड़ी बड़ी डिस्क के जरिए जो है लोगों ने होटल में बैठ के देखा। एक बड़ी जो बाधा थी इंडिया में प्राइवेट टेलीविजन के ग्रोथ में, वो बाधा ये भी थी कि सरकार एयरवेव्स को अपनी मोनोपोली मान के चलती थी। बड़ा रेसिस्टेंस था सरकार का कि जो है इसमें कोई न आए। और इसमें मुझे लगता है कि एज एकेडमिशियंस हम सभी लोगों को ध्यान में होगा कि इस तरीके से CAB वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मशहूर जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में प्राइवेट टेलीविजन के ग्रोथ को अलाउ किया, जिसमें कहा गया उस लैंडमार्क जजमेंट में कि एयरवेव्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। वहां से शुरू होकर और मुझे लगता है कि 1996 का वो कालखंड हम जैसे लोगों का करियर भी उसी के आसपास शुरू हुआ, जबकि इस देश में प्राइवेट टेलीविजन न्यूज ने अंगड़ाई लेनी शुरू की। 98 तक जाते जाते 2 न्यूज चैनल आ गए, एंटरटेनमेंट चैनल्स की तो बौछारी हो चुकी थी। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 2023 में इस पर बात कर रहे हैं। जाहिर है इंडिया में जो टेलीविजन शुरू हुआ वह गवर्नमेंट पॉलिसीज के डिसेमिनेशन के लिए शुरू हुआ, पार्टली पब्लिक पर्पस के लिए शुरू हुआ, किसानों को फसल से लेकर क्रॉप पैटर्न इन तमाम चीजों की जानकारी देने के इरादे से शुरू हुआ। लेकिन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ने ही इस देश में एंटरटेनमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो टीवी हो चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो, विविध भारती हो, DD2 हो, या उसके आगे बढ़ते बढ़ते ये तमाम चीजें। हम इस पर डिस्कस और डिबेट कर सकते हैं कि
प्राइवेट टेलीविजन इस देश में, जिसका एक हिस्सा न्यूज़ टेलीविजन भी है, कितना कमर्शियलाइज्ड है, क्या है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अस्तित्व के संकट से जो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर भी जूझ रहे हैं। उनको भी ये कहा जा रहा है कि भई आप अपनी कमाई खुद करिए, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सरकारें ज़ाहिर है धीरे-धीरे सेवा के क्षेत्र से बाहर निकलना चाहती हैं, कब तक सब्सिडाइज़ करेंगी। लेकिन उससे भी बड़ा जो चेंज आया है, वह है कंजम्पशन के पैटर्न। टेक्नोलॉजी हमेशा जो है, आपको नए-नए टूल्स देती है और वो नए-नए टूल्स जो है, जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं, उनको जो है सीरियसली इम्पैक्ट करते हैं। आप ध्यान रखें कि जो टेलीविज़न जो है, इंडिया में एक्सपेरिमेंटल तौर पे 59 से आकर, और अगर आप कहें रियल ग्रोथ जो है, अब आप क्या कहेंगे? कलर टीवी भी देखिए, श्रीलंका में हमसे पहले आ गया था। 1982 में इंडिया में एशियाड के टाइम में कलर टीवी आया। उसके पहले 60 साल जब श्रीलंका गए तो उनको पता चला कि श्रीलंका में तो ऑलरेडी कलर टीवी है। मुझे लगता है कि 90 के दशक के बाद जो टीवी ने यहाँ पर भरपूर अंगड़ाई ली, आज महज़ 25-30 वर्षों में प्रश्न ये हो गया है कि यह ग्रोथ आखिर कब, जिस तरीके से अखबारों के नए संस्करणों का मोटे तौर पर निकलना बंद हो गया है, उसी तरीके से आप देखेंगे तो धीरे-धीरे जो है नए चैनलों का लॉन्च होना बंद हो गया है। और यह मनोरंजन की दुनिया में थोड़ा अब भी हो रहा हो, न्यूज़ की दुनिया में तो मेरे ख्याल से फुल स्टॉप जैसा ही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि प्रिंट एज़ ए मीडियम, जब टीवी आया तो कहा गया कि भई प्रिंट का क्या होगा? मतलब प्रिंट चला, लेकिन आज ये भी सच्चाई है कि दिन पर दिन प्रिंट का रेवेन्यू घट रहा है। आप देखें अखबारों में नौकरियाँ किस तरीके से जा रही हैं। लोगों के जो ख्वाब होते थे कई संस्करण अलग-अलग शहरों में लॉन्च करने के, धीरे-धीरे वो संस्करण बंद हुए हैं। मुझे लगता है डॉक्टर भानावत ने इसको भी स्टडी किया होगा, इस ट्रेंड को। देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने हाल के महीनों में कितने लोगों को बाहर निकाला, ये हम सभी लोग जानते हैं। बाकी इंडस्ट्री के जो अलग हिस्से हैं, उनमें भी कमोबेश ये हाल है। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है? परिस्थिति इसलिए बनी है क्योंकि प्रिंट हो चाहे टेलीविजन हो, यहाँ जो कंज्यूमर था, व्यूअर था, रीडर था, उसने अपनी कंजम्पशन को कहीं और से जो है लेना शुरू कर दिया है, कुछ और कंज्यूम कर रहा है, और ये कंज्यूम जो कर रहा है वह जाहिर है डिजिटल है। यहाँ तक कि वो टीवी को भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसने कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, जो ओटीटी का जो व्याप बढ़ रहा है, और उसके सामने जो हम कह सकते हैं कि केबल एंड सैटेलाइट होम्स की संख्या घट रही है। आप ध्यान रखिए कि कुल मिला-जुला के जहाँ 120 मिलियन यानी करीब 12 करोड़ के आसपास इस देश में केबल एंड सैटेलाइट होम्स हैं, उसके सामने अगर आज की तारीख में हम देखें, जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी जो है, वो वाली देश की पॉपुलेशन जो है करीब 75 करोड़ के आसपास है, 750 मिलियन जो हम इसको कहते हैं। तो एक तो ये है कि टीवी के सामने आप प्रिंट को तो रहने दीजिए किनारे, आकाशवाणी को तो भूल ही जाइए, एफएम चैनलों का क्या हुआ सबके सामने है। अगर ओवरऑल अगर आप पाई को भी देखें तो ये सब आज की तारीख में कहीं टिकते नहीं हैं। तो अगर हम टीवी और डिजिटल की ही बात कर लें तो ज़ाहिर है जो शिफ्ट है और मेजर शिफ्ट है, लोग बड़े पैमाने पर टीवी के मुकाबले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कंज्यूम कर रहे हैं, जो डिजिटल पर लगातार एडवर्टाइजमेंट ग्रो कर रहा है। टीवी का ऑलमोस्ट स्टैटिक हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर जो है वो हमें एक और नई सुविधा भी दे रहा है, वो है डायनामिज्म की। डिजिटल जो है सो बेसिकली काफ़ी डायनामिक प्लेटफॉर्म है। जो आज की तारीख में जो आपका कंज्यूमर है, व्यूअर है, रीडर है, जो भी है, वह जो है प्लेटफॉर्म न्यूट्रल अप्रोच के साथ चल रहा है। वह अपने घर में बैठकर जो है टीवी भी देख लेता है, गाड़ी में बैठता है, कार चलाते हुए एफएम भी सुन लेता है, दफ्तर में बैठता है, मोबाइल के ज़रिए भी चीज़ें कंज्यूम करते रहता है। अब ये कह सकते हैं कि भई उसमें कितना जो है एंटरटेनमेंट है, कितना जो है न्यूज़ है। ज़ाहिर है न्यूज़ काफ़ी कम कंज्यूम किया जाता है, एंटरटेनमेंट कोसेंट ज़्यादा है। अगर डिजिटल में भी देखें वीडियो का कंज़म्पशन ज़्यादा है, लोग टेक्स्ट कम पढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि आज भी कमाई टेक्स्ट से ज़्यादा होती है अगर आप वेबसाइट्स की बात करें। तो ये दुनिया बहुत डायनामिक ढंग से जहाँ तक मीडिया कंज़म्पशन की बात है, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स भी बताते हैं वो ये है कि डिजिटल पर ग्रोथ होगी, और इसकी एक बड़ी झलक इस बात से मिलती है कि ग्रुपेम जो है उसका जो दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग मार्केटिंग कंपनी है, उसका ये कहना है कि जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ग्रोथ जो है वह 35 to 40% पर एनम की रफ्तार से लगातार बढ़ता रहेगा।
टीवी का जो ग्रोथ है वह जो सो हार्डली डबल डिजिट में है, 9-10% के आसपास। प्रिंट तो आप सच पूछें तो डिक्लाइनिंग फेज में है, निगेटिव ग्रोथ में है, चूंकि अभी भी मीडिया प्लानर्स को प्रिंट की लेगेसी में इंटरेस्ट है और वो भी बहुत ढाल नहीं पाए अपने को, इसलिए अभी भी प्रिंट को थोड़ा सा वो ये करके चलते हैं कि प्रिंट अभी भी ग्रो कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रिंट ग्रो नहीं कर रहा है। जाहिर है ऐसे में जो मुझे लगता है कि मैंने समय ठीक ठाक ले लिया, जो मुझे समय अलॉट किया गया था, जो मीडिया के अंदर जो नए चेहरे आने की तैयारी कर रहे हैं या जो इरादा कर रहे हैं, उनको इन डायनामिज्म को समझना होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो हम लोग कहते थे हाल तक कंटेंट इज द किंग। मुझे लगता है कि वह चीजें भी हमें थोड़ी सुधार लेनी चाहिए। कंटेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आज की तारीख में डेटा है। डेटा हमें ये बताता है कि लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। तो आज की तारीख में जो जर्नलिज्म इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी जो है मुझे लगता है कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी सिखा भी रहे हैं। जो डेटा जर्नलिज्म अपने आप में एक ये हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा डेटा क्रंचिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए परोस रहे हैं, क्या परोसना चाहिए आपको। ये सब सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो ये सारे कुछ बदलाव आए हैं। विश्व टेलीविजन दिवस के मौके पर मुझे लगता है कि मैं टीवी का कोई फातिहा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, महज सच्चाई से दो चार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मीडियम की अपनी महिमा है, महत्ता है, लेकिन ये भी आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस मीडियम की वैल्यू घटती बढ़ती रही है कंपैरेटिव टर्म्स में। आप सभी लोग आज के दिन एक साथ इकट्ठा हुए, धैर्य से अभी तक मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर भानावत का खास तौर पर जिन्होंने कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद। लिए बहुत बहुत आभार भाई डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी। आपने मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे यथार्थ को हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश की, और वो जो धारणा है कंटेंट इज किंग, जिसकी बात अक्सर करते हैं, रेखांकित करते हैं, और आपने उस दौर में डेटा को जो महत्व दिया। वैसे अब तो अलग पेपर भी शुरू हो गए डेटा जर्नलिज्म के, लेकिन ये सही है कि डिजिटल माध्यमों ने एक नया संसार हमारे सामने रच दिया है। और प्रिंट मीडिया के डिक्लाइन की जो आपने बात की, हमने एक पूरी वेबिनार इस पे की थी कि विल प्रिंट मीडिया सर्वाइव, आने वाले दौर में क्या प्रिंट मीडिया बचेगा। ये भविष्यवाणी हो रही है कि 2040 तक शायद प्रिंट खत्म हो जाए। लेकिन जैसा हम बात करते हैं कि हर दौर में, आपने भी कहा, कभी महिमा ज्यादा होती है, कभी कम होती है, ये दौर चलता रहेगा। टेलीविजन ने भी कई युग देखे हैं। जैसा आपने कहा कि वो दौर जब गल्फ वार का था, एक कल्चरल प्रोग्राम की तरह से हम एंजॉय करते थे, बच्चों को बुला के, हम भी छोटे ही थे उस समय, शुरुआत की थी नौकरी की, वो बुला बुला के कहता है देखो देखो वो बम फूट रहा है, ये हो रहा है। तो जो आपने रोमांच और रोमांस की बात कही, उस दौर से ये नई पीढ़ी निकल रही है। और जिस डायनेमिज्म की बात की आपने, निश्चित रूप से 75 करोड़ लोग यदि डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए इस देश में, तो जो दूसरे माध्यम है उन्हें सोचना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने कहा कि लोक प्रसारण माध्यमों ने उस व्यावसायिकता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग देकर के कि आकाशीय तरंगों पर किसी एक सरकार का अधिकार नहीं है, या तो प्राइवेट प्लेयर्स का जिस तरह से आगमन हुआ, उन्होंने समाचारों की और मनोरंजन की नई परिभाषाएं गढ़नी शुरू की। और जो हमारे नए विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं, शायद वो भी ये महसूस कर पाएंगे कि कितनी संभावनाएं और चुनौतियां उनके सामने आज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी सच्चाइयों से रूबरू कराया, और इस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। बहुत बहुत आभार आपका। कुछ और सवाल यदि बाद में होते हैं तो चर्चा को और विस्तार देंगे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रभाकर मिश्रा जी को। मैं इनको आमंत्रित करूं विचार अपने रखने के लिए और परिचय के लिए। उसके पहले मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि ई बुके से उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रियंका जी, प्रियंका जी आप सुन रही है ना मुझे? हाँ, बहुत बहुत स्वागत भाई प्रभाकर जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद। दूर से ही फूलों की खुशबू ले लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ये खुशबू जब भी मुझे समझ में आती है, सुगंध आती है, तो मेरी दो पंक्तियां मुझे बार बार याद आती हैं कि बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूं। तो ये खुशबू अलग अलग है कि भी खुशबू का एहसास कर सकते हैं।
प्रभाकर मिश्रा जी वर्तमान में न्यूज 24 के साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर और नेशनल ब्यूरो चीफ के रूप में। लगभग 2 दशक से अधिक का आपका अनुभव, टेलीविजन की दुनिया का, रिपोर्टिंग का आपका अनुभव, और विशेषकर लीगल रिपोर्टिंग में आप सिद्धहस्त हैं। आपने पिछले 2 दशकों में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण इवेंट्स कवर किए हैं जिन्होंने यूं कहूं कि एक तरह से भारत की जो पूरी राजनीति है उसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। उनके साथ आप बहुत ही गहराई के साथ, शिद्दत के साथ जुड़े रहे। आपका अनुभव रिपोर्टिंग के विविध क्षेत्रों में रहा है। एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग आपने की है, विशेषकर किसान आंदोलन जो अभी कुछ समय पूर्व हुआ था, इसके साथ आप जुड़े रहे। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया और लॉ ग्रेजुएशन LLB की उपाधि भी आपने प्राप्त की, और अकादमिक क्षेत्र से भी आपका जुड़ाव है। विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आप देश के कुछ प्रमुख जो विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं उनके साथ आप संबद्ध हैं, विशेषकर दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इनके साथ आप जुड़े हुए हैं। आपने रिपोर्टिंग के अपने उन अनुभव के आधार पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें रची हैं, जो मैंने आपसे कहा कि वो 2 ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने इस देश को कहीं न कहीं प्रभावित भी किया है। एक पुस्तक है एक रुका हुआ फैसला, अयोध्या विवाद के आखिरी 40 दिन। अयोध्या विवाद से हम सब लोग परिचित हैं, किस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था, उसके साथ आप जुड़े हुए थे, और जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वो सारा फैसला हुआ और वहां पर हियरिंग होती रही, उसको केंद्रित करके आपने ये पुस्तक लिखी जो पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित हुई है। आपकी दूसरी पुस्तक है किसान बनाम सरकार, आंदोलन की कहानियां। तो किसान आंदोलन बहुत पुराना नहीं हुआ है, इसको भी आपने बहुत व्यापक रूप से कवर किया और उस पर केंद्रित आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई उसे फ्री पेन उसने प्रकाशित किया था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अभी नेशनल ब्यूरो चीफ हैं न्यूज 24 के, तो मैं प्रभाकर मिश्रा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो टेलीविजन की दुनिया का जो आपका इतना लंबा अनुभव रहा 2 दशक से अधिक समय का, वो हमारे साथ कुछ साझा करें। भाई प्रभाकर मिश्रा जी। धन्यवाद प्रोफेसर धनावत और प्रोफेसर ओझा साहब, और पैनल में जितने लोग मौजूद हैं तो वरिष्ठों को मेरा प्रणाम। परिचर्चा सुन रहा था, और ऐसे परिचर्चा का एक ही फायदा होता है कि हमें कुछ जानने का, सुनने का, चर्चा करने का मौका मिलता है। और ये खासकर जब इस तरह का कोई दिवस हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका मकसद भी यही होता है कि कम से कम इसी बहाने हम चर्चा तो कर लें। और जब चर्चा करते हैं और उसमें आप जैसे वरिष्ठ और विद्वान लोग बैठते हैं, तो जब हम चर्चा के क्रम में अच्छी बातें, बुरी बातें, उन पन्नों को भी पलटते हैं जिन्हें हमें लगता है कि उधर जाना चाहिए था, उधर नहीं गए, या जिधर गए थे शायद भटक गए थे। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब ये 21 नवंबर को 1996 को जब ये संकल्प पारित किया और इस दिवस को मनाने का फैसला किया, तो उसमें जो मोटिव था वो यही था कि किस तरह से टेलीविजन लोगों के विचार को प्रभावित करता है, और लोगों के विचार को प्रभावित करता है तो दुनिया के विचार को प्रभावित करता है, दुनिया के लोगों को प्रभावित करता है। और ये जो विचार है, उसी विचार से दुनिया प्रभावित होती है, और दुनिया प्रभावित होती है तो वहां पर युद्ध भी है और शांति। मतलब कि जिस चीज को रेखांकित किया गया और जिस बात को यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया, मुझे लगता है कि इस सेलिब्रेशन का, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम देखें कि क्या जिस दिशा में हमें जाना चाहिए या जिस उद्देश्य के लिए टेलीविजन बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन जब हमने टेलीविजन को स्वीकार किया, जैसे हम कह रहे हैं कि 1996 में हमने स्वीकार किया कि उसका क्या प्रभाव हो रहा है, तो उस समय जिन उद्देश्यों को हमने माना कि यही महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है कि हमें अब वो समय आ गया है जब कम से कम आज, रोज तो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, कम से कम आज और
व्यवहारिक तौर पर न सही, सैद्धांतिक तौर पर ही सही। इसलिए कि पता है व्यवहारिक तौर पर दिक्कतें हैं, इसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, ब्रजेश जी भी कर रहे थे। आसान नहीं है, कहते हैं ना वो कि बहुत कठिन है डगर पनघटकी। तो आसान नहीं है उन उद्देश्यों को पाना, लेकिन ये भी सच है कि आप समझिए कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कोई क्राइसिस होती है, वो यूक्रेन हो सकता है, वो गाजा हो सकता है, वो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो सकता है। जब हम उसकी रिपोर्टिंग अलग अलग पहलुओं पे करते हैं तो एक व्यापक अवधारणा बनती है और वहीं पर टेलीविजन की महत्ता समझ में आती है। विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी, कहने के लिए वो कह देंगे कि इसमें बड़े देश, पावर प्लेयर्स जो होते हैं उनकी भूमिका होती है। दरअसल उनको भी जो शक्ति गाइड करती है, मैं समझता हूं कि उनको गाइड करने वाली शक्ति जो है वो कहीं न कहीं इस टेलीविजन नामक विधा में है, ये इंस्ट्रूमेंट में है। यहीं से वो राय बनती है, यहीं से राय बनती है कि कौन एग्रेसर है, यहीं से वो राय बनती है कौन विक्टिम है। और ये जो राय बनाने की जो जिम्मेवारी है, टेलीविजन तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो जो कंटेंट हम जो परोसते हैं, अभी भी मैं इस चीज को मानता हूं कि कंटेंट इज द किंग। क्यों? कि उस किंग ने निर्धारित कर दिया कि एग्रेसर कौन है। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम अपनी राय रखते हैं, तो हम वो कंटेंट बनाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम उस कंटेंट में अपने राय, अपने विचार दर्शकों तक पहुंचाते हैं और वही बात वहीं से तय हो जाती है कि दुनिया किसको एग्रेसर मानेगी, दुनिया किसको पीड़ित मानेगी, अंतरराष्ट्रीय। और वहीं पर शांति का भी मार्ग निहित है कि किधर जाना है और शांति मिलेगी कैसे। इसलिए कि जब भी कोई ऐसी क्राइसिस होती है तो जैसे ही इस बात की पहचान हो जाए कि विक्टिम कौन है, एग्रेसर कौन है, तो शांति की राह खुद ब खुद दिखने लगती है। और ये काम हम टीवी के जरिए, टेलीविजन के जरिए करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मसले की बात, हम थोड़ा देश में आते हैं। जिन मसलों को हमने उठाया, जिन मसलों को टीवी ने दिखाया, मैं न्यूज की बात नहीं कर रहा, पूरे वो चाहे मनोरंजन हो या न्यूज हो या कल्चर हो, जिन चीजों को हमने उठाया, संयोग से होदा साहब यहां पर हैं और छठ की महत्ता आप लोग भी जानते हैं। जब जिस दिन से टेलीविजन पर बिहार, यूपी, पूर्वांचल के एक आंचलिक पर्व को टेलीविजन के फलक पर टेलीविजन ने उसे दिखाना शुरू किया, तो आज आपको दिखेगा कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में छठ के इस महापर्व का सब जगह सेलिब्रेशन हुआ, सब जगह मनाया जाता है और वो दिख रहा है। तो ये सांस्कृतिक विस्तार में ये है टेलीविजन, दूरदर्शन की महत्ता। एक पता नहीं हम यहां उसे मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी उस हम नाम नहीं रखेंगे सावधानी के साथ, कि इस देश में इस टेलीविजन ने, कुछ धारावाहिकों ने कुछ खास पर्व त्योहारों को इतना हाईलाइट किया कि वो जिस इलाके में जहां नहीं मनाया जाता था वहां भी मना दिया गया, या मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। टेलीविजन का सांस्कृतिक किस तरह से विस्तार हो रहा है उसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जो समझा हूं, एक फिल्म आती है और उस फिल्म में बहुत ही बढ़िया व्यापक ढंग से संतोषी माता, ये हमारे जन्म के आसपास की फिल्म आई होगी, और मुझे जहां तक बताया गया कि उसके पहले संतोषी माता के व्रत का उतना कोई प्रचलन नहीं था, और उसके बाद पूरे उत्तर भारत में कम से कम तो संतोषी माता के व्रत का यो चलन हो गया, आज भी होता है। तो ये सांस्कृतिक विस्तार में दूरदर्शन, ये टेलीविजन की भूमिका है, और सांस्कृतिक विस्तार में ही संस्कृतियों का मेल मिलाप निहित है। और मैं जो समझता हूं कि
संस्कृतियों के मेल मिलाप में ही युद्ध रोकने के उपाय निहित है। जब संस्कृतियों का मेल मिलाप होता है तो हमें अपना और दूसरे को समझने का मौका मिलता है, अपनी कमियों, दूसरे की कमियों, अपनी अच्छाइयों को, दूसरे की अच्छाइयों को समझने का मौका मिलता है और तब कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश कम होती है। हम जितना दूर रहते हैं उतना विरोध होता है, जितने नजदीक आते जाते हैं हम एक दूसरे को समझते जाते हैं और समझते जाते हैं और विवाद कम होता जाता है और उसमें इसकी महत्ता है, इस दूरदर्शन की, टेलीविजन की महत्ता। अब हम आते हैं यहां, अपने यहां थोड़ा सा इतिहास में हम जाते हैं, इतिहास में हम गए, आप लोग गए और मुझे लगता है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा। बात मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को लोग जब हम पार्लियामेंट हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ और चौथा है वो मीडिया, और मीडिया का ही एक वो टेलीविजन का एक अंश है। तो टेलीविजन का जो अंश है मीडिया, ये किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रभावित करता है, ये बताने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक बार फिर मैं रिकॉल करा दूं कि कभी जब हम कहते हैं कि हर बात के लिए आप मीडिया को क्यों कोसते हो, तो इस देश का आम जनमानस से जब बात कीजिए तो वो कहते हैं कि जब आप ही अच्छी-अच्छी बातें बताते हो, तो हम सवाल तो आप ही से करेंगे। ये है तो किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है और उस मीडिया में टेलीविजन है। उसी मीडिया में तो ये टेलीविजन का ये जो है लोक डेमोक्रेसी में टेलीविजन की ये महत्ता है और इस महत्ता को आप ऐसे समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में राइट टू नो जो है, जानने का अधिकार जो है, उस जानने में सब कुछ छिपा हुआ है। उस जानने में छिपा है कि आप किसी को वोट देते हैं, वो कौन है, उस पे कितने मुकदमे हैं, वो चार्जशीटेड तो नहीं है, उसकी फंडिंग कहां से होती है। संयोग से मैं जब फंडिंग का जिक्र किया, अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, मामला ऑर्डर रिजर्व हुआ, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बात कही थी। ये बात यही हो रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड, लोगों को जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कहां से पैसा आता है। वो इसलिए जानना जरूरी है कि जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि इस पार्टी को किस बिजनेसमैन का पैसा आता है, तब तक हम फैसला नहीं कर पाए। या हो सकता है कि हम जिसे अच्छा मान रहे हों, हम जिसे लोक कल्याण वाला उन्मुख पार्टी मानते हो, दरअसल उसके पीछे तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो ऐसे में जब ये पार्टी सत्ता में आएगी, तो हमारी कहां सुनेगी, उनकी सुनेगी। इसलिए हमारा जानना जरूरी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, ये जानने का अधिकार में निहित नहीं है, इसलिए इसे नहीं बताया जा सकता। ये मैं इसलिए इस ये उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी के सफल संचालन के लिए मीडिया का होना कितना जरूरी है और इसी मीडिया के होने में जानने का अधिकार निहित है। और इस जानने के अधिकार जितना होगा हमारा, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और इसमें दूरदर्शन की, उसमें टेलीविजन की, मैं बार-बार दूरदर्शन और टेलीविजन चूंकि ट्रांसलेशन के चक्कर में मैं दोनों का समानार्थी शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि कई बार अंतर होने लगता है। अब बात आती है कि जब हम ये कहते हैं कि हर मसले में, हाल के दिनों में जब हम कोई भी कहीं भी कोई पब्लिक डिस्कोर्स होती है, कोई भी किसी मसले पर चर्चा होती है, प्रदूषण पे चर्चा होगी, प्रदूषण पे चर्चा होगी, जब कोई राय बनती है तो प्रदूषण के लिए जिम्मेवार कौन है, ये तय गाड़ियां नहीं करती है कि कितनी गाड़ियां चल रही हैं। ये इससे तय नहीं होता कि पराली की घटनाएं कितनी है। ये इससे तय नहीं होता कि दिवाली में पटाखे कैसे जलते हैं, कितने जलते हैं। ये इससे तय होता है कि सबसे अधिक किस मसले पर चर्चा हो रही है। और ये चर्चा कहां होती है? ये चर्चा टेलीविजन में।
जब हम अपने संस्कृति की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि हमारे संस्कृति में तमाम कमियां आ रही हैं, तो ये चर्चा कहां होती है? तो हम दोष देते हैं टेलीविजन। लेकिन जब हम साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे या आज के बच्चे पिछली पीढ़ी से ज्यादा अच्छे जागरूक हैं, तो हम क्रेडिट किसे देते हैं? टेलीविजन को। तो मतलब ये कि एक छोटा सा बक्सा, पहले बक्सा था, अब तो बक्सा नहीं रहा, अब तो ये बड़ा स्लिम सा हो गया, स्मार्ट हो गया। दुनिया में कोई चीजें, तमाम चीजें स्मार्ट हुई होंगी, लेकिन टेलीविजन ने जो स्मार्टनेस ग्रैब किया है, दुनिया की कोई चीज ने ग्रैब नहीं किया है। ये दिनों दिन स्मार्ट होते जा रहा है। दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, उससे कई गुने स्पीड से ये टेलीविजन बदल रहा है। इसने आपके फोन को भी ले लिया। अभी आप अपने फोन में आप टेलीविजन पे ही आप फेसबुक भी चला लेते हैं और यूट्यूब भी देख लेते हैं, सब कुछ। तो ये सबसे स्मार्ट है। और पहले एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ था जब टीवी का प्रादुर्भाव हुआ था कि इडियट बॉक्स। अब पता चलता है कि हम टेलीविजन को जो पहले रिमोट से वो करते थे, चलाते थे, अब आप देखेंगे कि टेलीविजन के हाथ में रिमोट है और हमें चला रहा है, हमारी सियासत को चला रहा है, हमारी दुनिया को चला रहा है। तो इडियट बॉक्स जो है उसका फलक इतना बड़ा हो गया है। तो इसमें अब जरूरत इस बात की है, अब चर्चा इस पर होनी चाहिए कि ये है और रहेगा। इसमें चाहे वो न्यूज वाले लोग हों, चाहे मनोरंजन वाले लोग हों, या चाहे संस्कृति पर काम करने वाले लोग हों, एग्रीकल्चर पे काम करने वाले लोग हों, बिजनेस वाले लोग, काम करने वाले लोग, सबको इस दिशा में सोचने की जरूरत है कि टेलीविजन को जो घर-घर में पहुंच चुका है, रोज पहुंच रहा है, रोज बढ़ रहा है। इसकी कोई शर्त ही नहीं है। पहले टेलीविजन के सेट्स बहुत महंगे आते थे, अब बहुत सस्ते हो गए। अब कोई हाउस होल्ड ऐसा नहीं है, लोगों के घर में बहुत ऐसे घर ऐसे हो सकते हैं जिनके घर में बढ़िया बेड नहीं हो, लेकिन उनके घर में एक स्मार्ट टीवी है। तो टीवी का होना अवश्यंभावी है। तो जब हमें पता है कि टीवी आ गई, तो हमें क्या करना है कि वहां पर जो कंटेंट जाना है, उसमें एक मानक निर्धारित हो, मिनिमम, कि इससे खराब कुछ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होने जा रहा है। जब हमारे बच्चे टेलीविजन से ही पढ़ते हैं, जब हम हिंदुस्तानी क्लासिकल टेलीविजन से ही सीख सकते हैं, ये व्यवस्था आ गई। जब हमें हिंदुस्तानी नृत्य सीखना है, हम टीवी से ही के जरिए ही सीखते हैं। हमें अपने देश की संस्कृति के बारे में जानना है, टीवी ही हमें बताता है। हम अपने यहाँ के व्रत त्योहारों के बारे में जानना है, प्रार्थना के बारे में जानना है, हमें टीवी ही बताता है। हमें एग्रेसर कौन है, विक्टिम कौन है, ये भी समझना है, हमें टीवी ही बताता है। तो जब टीवी को हमने इतना बड़ा बना दिया, तो उसके इस बड़प्पन को बनाए रखने के लिए, उसका प्रभाव चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, तो भस्मासुर साबित नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, वेदर ये वो कंटेंट क्रिएटर्स हो सकते हैं, वो प्राइवेट चैनल वाले हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकती है जो इसे रेगुलेट करती है, सबको मिलकर कम से कम आज हम इस पर ये बात कह सकते हैं, सकारात्मक सोच के साथ ये कह सकते हैं कि सबको मिलकर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, इस दिशा में सोचनी चाहिए कि जब घर-घर में ये पहुंच गया है, तो इससे कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे हमारा कोई सामाजिक दूषण हो रहा हो, हमारा समाज करप्ट हो रहा हो, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं जब समाज की बात करता हूं, तो दिस समाज इंक्लूड्स हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, हमारे सियासत भी है, नेता लोग मतलब सियासत है, सब लोग इसमें हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर मैं न्यूज़ से हूँ, तो मुझे न्यूज़ की तरफ से ये सोचना होगा। अ, तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम कॉलेजेस के अपने-अपने चैनल हैं, वहाँ पर कंटेंट कैसे जाने हैं। अ, फ़िल्में आती हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आते हैं, बड़ा दूषण है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें हैं। उनको कैसे रेगुलेट करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है कि उसका कुछ गड़बड़ी ना हो। तो ये सबको मुझे लगता है कि अ ये हमारी महती ज़िम्मेवारी है, सबको इस ज़िम्मेवारी को समझना होगा, इसको सोचना होगा। इतनी सी बात कहनी है और मुझे बस इतना उसमें एक रेखांकित करना है
कि कोई विधा आ जाए, कोई भी माध्यम आ जाए, अब टीवी को, दूरदर्शन टेलीविजन को घर से दूर नहीं किया जा सकता। ये इतना स्मार्ट है कि आप उसे निकालेंगे भी तो कहीं नहीं जाएगा। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सुना। मैं आप लोगों में मैं कोई तैयारी करके नहीं आया था। ये जो मैं ऑब्जर्व किया था, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को शेयर करूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रभाकर जी, आपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए अपने। और महत्वपूर्ण बात कि टेलीविजन भस्मासुर नहीं बने, इसके लिए आपको हमको ही तैयार रहना होगा। जिस तरह का प्रसारण ये माध्यम करते हैं, निश्चित रूप से एजेंडा भी सेट होता है। कुछ इस तरह के भाव आपने व्यक्त किए, और कहीं इनकी जो अंकुश है वो इनके दर्शकों की ओर से ही होगा। किस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है, कहीं आपने ये भी अपील की कि हम उस पर ध्यान रखें। बहुत सारे उदाहरण दे करके आपने ये समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से ये माध्यम हमारे जीवन में रच बस गए हैं, और शायद इन्हें निकालना अब लगभग असंभव है। इनके रूप अलग हो सकते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, कहीं न कहीं ये माध्यम हमें प्रभावित करेंगे। अब ये सत्र कुछ देर के लिए चर्चा के लिए खुला है। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, जो भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, लंबा अनुभव मीडिया में रहा, हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ रहे, उसके पहले टाइम्स नाउ में भी रहे, और भी चैनल्स में काम किया, वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा संक्षेप में आप भी अपने कुछ विचार आज के इस दिन पर प्रस्तुत करें। प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, पहले म्यूट करें, आप अनम्यूट हो रहे हैं अभी। हाँ, प्रोफेसर भानावत को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे गुरु हैं, और मुझे हमेशा बहुत गर्व का अनुभव होता है जब ऐसे किसी मंच पे मुझे बोलने का अवसर मिलता है जहाँ पर मेरे गुरु मौजूद हों। आज मैं मीडिया टीचिंग में जो कुछ भी हूँ उसका पूरा श्रेय आपको है। आपको नमस्कार प्रोफेसर हुडा, गुड इवनिंग। ब्रजेश जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं देखकर। प्रभाकर जी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ स्टूडेंट्स हैं, सबको सबसे पहले नंद जी आप भी दिख रहे हैं, आपको भी प्रणाम। सभी को वर्ल्ड टेलीविजन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मुझे लगता है कि ब्रजेश जी और प्रभाकर जी ने जितनी मैं माफ़ी के साथ ही कहना चाहता हूँ कि मैं नंद जी को सुन नहीं पाया, लेकिन मैंने ब्रजेश जी को और प्रभाकर जी को पूरा सुना है, तो बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश कुछ ऐड करने की उसमें बचती नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ प्रभाकर भाई की इस बात को आगे बढ़ाने के गरज से ये कहना चाहता हूँ कि जब सबसे पहला कानून भारत में टेलीविजन को रेगुलेट करने के लिए बना, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995, उसी वक्त 1995 में ही उस एक्ट में सेक्शन 5 में और सेक्शन 6 में दो तरह के कोड थे, जिनको एथिक्स कोड भी हम कह सकते हैं। एक था प्रोग्राम कोड और एक था एडवर्टाइजिंग कोड। तो 1995 में ही हमें देश के कानून ने बता दिया था कि टेलीविजन पे किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जा सकते। बड़ी मजेदार बात है कि उस कोड में ये नहीं लिखा है कि क्या करना है। उस कोड में 8-10 पॉइंट्स हैं, वो ये लिखते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम नहीं दिखाने हैं या किस तरह का विज्ञापन नहीं दिखाना है। और ये जो कानून बना, ये उसके बाद से, हालांकि प्रोग्रामिंग कोड कई बार अमेंड हुआ, लगभग 6-7 बार उसमें अमेंडमेंट्स हुए, और जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 26/11 के आसपास हुआ था, जब प्रोग्रामिंग कोड में एक लाइन ये डाली गई कि यदि कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा किया गया ऑपरेशन चल रहा हो तो उसकी लाइव रिपोर्टिंग नहीं करनी है, और जब तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक सिर्फ टीवी को जो एक नामित व्यक्ति हो, सरकार के द्वारा कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो, वो जो बता रहा है वही जानकारी प्रसारित करनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट हुआ। और एक और मजे की बात है कि उसके बाद ये जो कानून 1995 में बना था, ये पहली बार एक वृहद रूप में इसका अमेंडमेंट हुआ 2021 में, जब उसमें ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तक हम ये नहीं जानते थे कि टीवी पर दिखने वाले कंटेंट से हमें यदि कोई समस्या है तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि एक ब्रॉडकास्टर्स की बॉडी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन थी, और उसने एक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC बना रखी थी। लेकिन चूंकि वो प्राइवेट संस्था थी, आपने शिकायत की, ब्रॉडकास्टर की मर्जी है उस शिकायत को तवज्जो दे या नहीं दे। कहीं उसमें सरकारी या स्टेचुटरी कोई प्रोविजन नहीं था।
और जो 2021 का अमेंडमेंट हुआ केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट में, उसने एक ग्रीवांस मैकेनिज्म उसमें इंट्रोड्यूस किया। वो 3 लेवल का मैकेनिज्म है। पहला जो ग्रीवांस है वो उसका रिड्रेस ब्रॉडकास्टर स्वयं करेगा, यानी सेल्फ रेगुलेशन। देखिए, ये हमें बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है और अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इतने वर्षों तक टीवी अपने देश में फल फूल रहा है, बावजूद इसके सरकार ने कभी उसको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ जिस मॉडल पे ज्यादा काम होता है, जिस मॉडल को ज्यादा अहमियत दी जाती है, वो है सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ रेगुलेशन। तो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में भी पहला स्टेप है कि खुद रेगुलेट कीजिए। यदि मुझे कोई समस्या है, मैं उस ब्रॉडकास्टर को लिखूं, ब्रॉडकास्टर उसको ठीक कर दे 15 दिन के अंदर। नहीं करता है या कर देता है और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो फिर ब्रॉडकास्टर्स की ही सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज, जिसको SRBs कहते हैं, उनमें समस्या जाएगी। और जब ये दोनों लेवल पे आपकी समस्या का निदान नहीं होगा, तब कहीं जाके तीसरे स्तर पे सरकार उसमें स्टेप इन करेगी और वो ओवरसाइट मैकेनिज्म, जो एक इंटर डिपार्टमेंटल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, वहां पर जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा मामला आता है जहां पे सरकार को लगता है कि उसको तुरंत स्टेप इन करने की जरूरत है, देश की सिक्योरिटी उसमें इन्वॉल्व है, कोई बहुत ऐसा विषय है जिसमें तुरंत यदि कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत बवंडर मच सकता है, तो उसमें वो सरकार का जो थर्ड स्टेप है ओवरसाइट मैकेनिज्म, वो डायरेक्टली इंटरवीन करके और उसकी किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा सकती है। हर वर्ष लगभग जनवरी फरवरी में सूचना प्रसारण मंत्रालय एडवाइजरी जारी करता है और सारे टीवी चैनल्स को, खास करके जो समाचार के चैनल्स हैं, उनको ये कहता है कि इन इन मौकों पर आपने प्रसारण कोड का उल्लंघन किया है और कृपया करके इसको आगे ऐसा ना करें। देखिए, गौर करने की बात है, एडवाइजरी जारी करता है, जबकि जो अमेंडमेंट हुआ है केबल नेटवर्क रेगुलेशंस एक्ट में, उसमें बाकायदा ये पावर है सरकार को सेक्शन 20 में कि यदि वो चाहे तो उस चैनल का प्रसारण रोक सकती है या कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ महीनों के लिए उसे ऑफ एयर कर सकती है। बावजूद इसके सरकारें ऐसा कभी नहीं करती, और ये किसी अभी की सरकार की बात नहीं है, जितनी भी सरकारें रही जब से कानून बना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ टेलीविजन और ये OTT गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, सबके साथ इस तरह का एक मैकेनिज्म, जब 2021 में ये समझ में आया सरकारों को कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं, जिनको हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपके और मतलब कंटेंट जनरेटर के और कंटेंट कंज्यूमर के बीच में इंटरमीडियरीज का काम करती हैं, इनके बारे में रेगुलेशन का कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं है। और जब IT एक्ट पहली बार अमेंड हुआ 2021 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी, इंटरनेट इंटरमीडियरी एंड कोड, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स जो बन के आए, जिसमें पहली बार ये एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया सरकार ने कि डिजिटल मीडिया पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उसमें भी यही बात है कि जो OTT को लेकर शुरू से इस तरह की बातें होती रही, जैसे ही अपने देश में OTT प्लेटफॉर्म्स का प्रादुर्भाव हुआ कि भाई इसमें तमाम तरह की गंदगी है, गालियां हैं वगैरह वगैरह, तो वहां भी सरकार ने सबसे पहले कहा कि आप खुद रेगुलेट कीजिए। और उस रेगुलेशन का ही पार्ट है कि अब वो आप देखेंगे OTT हर कंटेंट पे ऊपर लिखा रहता है कि किस एज ग्रुप के लिए देखने का है, इसमें वायलेंस है, इसमें एडल्ट कंटेंट है, इसमें किस तरह का कंटेंट है। और उसी के साथ हर इंटरनेट इंटरमीडियरी को ग्रीवांस ऑफिसर बनाने की बात की गई है। तो टेलीविजन के रूप में के विशेष संदर्भ में ये कहना बहुत आवश्यक है कि 95 से लेकर 2021 तक सिर्फ एक 10 या 8 या 10 पॉइंट का प्रोग्राम कोड था, जो एक कोड ऑफ एथिक्स था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे बहुत से साथी जो टेलीविजन में काम करते हैं, न्यूज में जो काम करते हैं, उनकी अवेयरनेस तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जो नॉन न्यूज कंटेंट के लोग, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, जो फिल्म्स बनाते हैं, जो सीरियल्स बनाते हैं, उनमें से प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना तो उस एक्ट को पढ़ा है, ना उस प्रोग्राम कोड को पढ़ा है, और इसलिए ये वायलेशंस लगातार होते रहते हैं। तो हालांकि अब समय इस तरफ जा रहा है कि हमारा ज्यादा कंजम्पशन इस समय सोशल मीडिया पे होने लग गया है। विश्व की लगभग 62% जनसंख्या मंथली एक्टिव यूजर है, और ज्यादा लोग टीवी कंटेंट का भी कंजम्पशन जो है वो मोबाइल से करने लगे हैं या इंटरनेट की डिवाइसेस से करने लग गए हैं।
लेकिन ये हम सभी को याद रखना, और आज का दिन उसके लिए इससे मुफीद कोई वक्त नहीं हो सकता, समय नहीं हो सकता कि हम ये जानें कि हमारे देश का जो कानून जो 1995 में बना हुआ है वो किस तरह के कंटेंट को प्रसारण करने की अनुमति देता है। और ये भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि सरकार के पास किसी भी टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने के, किसी भी टीवी चैनल को ऑफ एयर करने की क्षमता, ताकत, शक्ति होने के बावजूद सरकारें सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी जारी करती हैं, क्योंकि सरकारों का यही मंतव्य है कि टीवी पर जो भी हो रहा है वो सेल्फ रेगुलेट हो। टीवी चैनल्स, चाहे न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे नॉन न्यूज़ कंटेंट के लोग हों, वो सब अपना किस तरह का विज्ञापन दिखाते हैं, किस तरह के सीरियल्स बनाते हैं, किस तरह की फिल्में दिखाते हैं, किस तरह की न्यूज़ दिखाते हैं, वो सभी लोग ये जो 8-10 पॉइंट है इनको फॉलो करेंगे तो कंटेंट को लेके कोई समस्या नहीं होगी। बाकी बहुत विस्तार से ब्रजेश भाई ने, तो मैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था आपको, और मतलब बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश थी नहीं, लेकिन चूंकि भानावत सर का आदेश था और गुरु का आदेश तो टाला नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये इतनी सी बात कह के, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः सबको वर्ल्ड टेलीविजन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार गोस्वामी जी, आपने उसके लीगल पक्ष की ओर ध्यान दिलाया। बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा। और भी हमारे मित्र यदि को टिप्पणी करना चाहें, अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपनी बात कहें। कोई भी सवाल हो हमारे एक्सपर्ट के साथ, कुछ भी आप महसूस कर रहे हो तो बात कह सकते हैं। फीडबैक लिंक जनरेट करने के लिए लिंक यहाँ पोस्ट कर दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से प्रोफेसर हुडा जी बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। हुडा साहब। तो फ्रेंड्स, फीडबैक लिंक चैट विंडो में शेयर किया गया है। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे लिखा करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेल पे, और कुछ लोग फोन भी करते हैं कि सर वो मैंने सर्टिफिकेट नहीं जनरेट किया, आप मुझे सर्टिफिकेट दें। तो डियर फ्रेंड्स, ये दोबारा एक बार समझ ले, ये फीडबैक लिंक सिर्फ चैट विंडो में दिया जाता है। चूंकि जो लोग यहाँ मीटिंग रूम में आए हैं उनका ही हक बनता है सर्टिफिकेट लेना, तो इसी वजह से इस मीटिंग रूम के बाहर किसी दूसरे माध्यम से आपको सर्टिफिकेट जनरेट करने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं दी जाएगी। अब जो फीडबैक लिंक है उससे कॉपी पेस्ट करने के बजाय डायरेक्टली क्लिक करें, वो आप एक ब्राउजर में खुलेगा, वहां गूगल फॉर्म है, उसमें 4-5 मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको डालनी है। जो आप इंफॉर्मेशन पहले रजिस्ट्रेशन के पर्पज से डाल चुके हैं उसे आप भूल जाए, आप यहाँ फ्रेश इंफॉर्मेशन डालें। प्राइमरीली मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एब्रिविएशन में, ताकि कम जगह ले और सर्टिफिकेट आपकी सुंदर बढ़िया निकल कर आए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जो स्पेसिफाइड जगह है उससे बड़ा अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया तो वो इंटरस्पर्स हो सकता है, किसी दूसरे कैरेक्टर से मिक्स हो सकता है। तो अपना नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अगर आप इस वक्त किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं तो जो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज या आपके एम्प्लॉयर्स रहे होंगे उनका नाम लिख सकते हैं एब्रिविएशन में। एंड फाइनली आपकी करेक्ट ईमेल आईडी, और अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो सिर्फ जीमेल आईडी लिखिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही ये फीडबैक आप सबमिट करेंगे, यहाँ से आपका नाम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पिक किया जाएगा, उसे मेल मर्ज करके एक आपके लिए सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा सॉफ्टवेयर। वो सर्टिफिकेट क्रिएट करने के बाद उसका पीडीएफ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। फिर सॉफ्टवेयर एक मेल क्लाइंट खोलेगा और आपके नाम से एक मेल लिखेगा, उस मेल में वो पीडीएफ कॉपी को अटैच करेगा और आपको भेज देगा। तो आप जैसे ही फीडबैक फॉर्म सबमिट करते हैं, इमीडिएटली सॉफ्टवेयर एक्शन में आ जाता है। एंड ऑल दिस वर्क हैज टू बी डन विद इन 30 सेकेंड्स। मैं 1 मिनट कहता हूं कि 1 मिनट के अंदर ये सारा काम होके आपके इनबॉक्स में सर्टिफिकेट डिलीवर हो जानी चाहिए। आप अपना इनबॉक्स भी चेक करें, ईमेल का, जीमेल का। चूंकि ये गूगल का एपीआई है तो ये जीमेल के साथ बहुत सीमलेस काम करता है। अगर जीमेल के अलावा कोई आईडी है, मजबूरी है तो लिखे, उसके साथ भी काम करेगा, बट इट वर्क्स बेटर विद जीमेल। और 1 मिनट के बाद अपनी मेल आईडी खोलें, इनबॉक्स भी देखें, स्पैम मेल भी देखें। अगर ना मिले, आपको ऐसा दिखा कि मैंने फीडबैक फॉर्म तो सही पढ़ा था लेकिन मेरी मेल पे मेरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप चैट विंडो में अपना नाम और अपना ईमेल आईडी जो आपने वहां लिखा है वो लिखें। हमारे टीम मेंबर्स सर्टिफिकेट 100% जनरेट हुई है, उसका लोकेशन गूगल ड्राइव का ढूंढ के आपको वो लिंक इसी चैट विंडो में दे देंगे, जहां आप क्लिक करके अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, ये अब 15-20 मिनट और खुला है। एक बार ये मीटिंग रूम हमने क्लोज कर दिया
तो फिर कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए आपको सर्टिफिकेट दिया जा सके. सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव एंड लीव दिस रूम ओनली व्हेन यू गेट सर्टिफिकेट and write that I have got the certificate, and wait for 26th of November. We will be coming with another webinar on Samvidhan Means. So thank you so much, my dear friends. हाँ साहब, कोई मित्र कुछ कहना चाहते हो तो आमंत्रित है, नहीं तो फिर अपन वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करके इसको वाइंड अप करते हैं. और जैसा हुडा जी ने बताया, अपनी आगामी जो वेबिनार है वो 26 नवंबर को सुबह 11 बजे है, रविवार का दिन है उस दिन, और उसका विषय हमने रखा है संविधान और सिनेमा, संवैधानिक मूल्य और सिनेमा. इसमें एक जिनको इसी विषय पर एक फेलोशिप मिली है, ग्वालियर में IITM यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म के हेड हैं डॉक्टर मनीष जैसल, वो हमारे साथ होंगे. ETV की वहाँ जो भोपाल में हेड हैं शेफाली, वो हमारे साथ होंगी. और बालेसर फकीर मोहन यूनिवर्सिटी और जो है बालेसर उड़ीसा में, वहाँ की जर्नलिज्म के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति पाढ़ी, ये 3 हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे. लिंक जिस लिंक से आप आज जुड़े हैं वही है, और बाकी डिटेल्स आपको सोशल मीडिया और ईमेल्स के थ्रू दे दी जाएगी. हाँ, कोई मित्र हमारा कुछ कह रहे थे जी. अपना वीडियो ऑन करें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी. हेलो, और अपना नमस्ते परिचय भी दें. सर. मेरा प्रभाकर सर से एक सवाल है कि जैसे टेलीविजन आज एक विश्वास बनता जा रहा है टेलीविजन पर हमारा, क्योंकि जितनी फ्रॉड न्यूज सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, तो हम लोग जब टीवी देखते हैं तो हम टीवी पर एक विश्वास करते हैं, लेकिन टीवी पर भी बहुत सारे चैनल ऐसे हो गए हैं कि जिन पर विश्वास करना मुश्किल है. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या इस पर प्रतिबंध नहीं होगा? ऐड ऐसे आते हैं कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन टेलीविजन में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं पूरा विश्वसनीयता के साथ काम करते हैं और हमें बहुत विश्वास होता है और हम उन पर भरोसा करते हैं. पहली एक बात तो ये कि आपने जो बात कही इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि कई बार ऐसी चीजें ज्यादा हो रही हैं, आजकल ज्यादा हो रही हैं. लेकिन ये भी सही है कि जब तक टीवी में कोई खबर नहीं आती ना, तब तक सोशल मीडिया की खबरों पर कोई भरोसा नहीं करता. ये है टेलीविजन की शक्ति. अब ये बात आती है, तो मैंने जो अपने संबोधन में बात कही कि अगर आपके पास पावर अधिक है, आपके पास वरदान देने की शक्ति अगर आपके पास है, तो आपको शक्ति का इस्तेमाल, प्रयोग भी सोच समझकर करना चाहिए. यही हम भूल रहे हैं. और ये एक तात्कालिक घटनाक्रम के तौर पर इसे देख सकते हैं. मैं बहुत आशावादी हूं. तो ये चीजें आजकल आई हैं. बस आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरह की इंफॉर्मेशन आती हैं जो एक्यूरेट नहीं है. तो आपके पास विकल्प है, वो जो रिमोट है ना, वो विकल्प आपके पास, वो आपको विकल्प देता है. तो थोड़ा सा इसमें इतनी सी मेहनत करनी होगी, और वो दौर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जब फिर हम उस दौर में गुजरेंगे जहां पर कहते थे ना कि टीवी में खबर छप आ गई या अखबार में खबर छप गई तो ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर जैसे हो जाते थे. कि अगर सामने आप देख रहे हैं तो भी अगर हम कहे कि नहीं वो सामने आता, नहीं अखबार में छप गई, हम तभी मानते थे जब अखबार में छप गई. सामने देखी हुई बात पर हम भरोसा नहीं करते थे, अखबार में छपी हुई बात पर भरोसा करते थे. सामने घटी हुई घटना पर भरोसा नहीं करते थे, टीवी में दिख गया तो घटना पर भरोसा करते थे. तो वो एक हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हिचकोले वाला दौर है. ये जाएगा और वो फिर समय आएगा. अभी बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है. जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि वो ब्रांड देख लेते हैं, थोड़ा सा महंगा सस्ता देख लेते हैं, थोड़ा छू करके देख लेते हैं, किसी से फीडबैक लेकर देख लेते हैं. अभी तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है. जी धन्यवाद. इंतजार करेंगे. ये जयवीर थे, पूना से रिसर्चर है वहाँ, और ये बहुत लंबे समय से हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट है जो वेबिनार्स में जुड़ रहे हैं. हाँ, और कोई मित्र कुछ पूछना चाहे, कहना चाहे? सर हम वोट ऑफ थैंक्स हाँ, वोट ऑफ थैंक्स के लिए तो हमारे आज के सारे अतिथि स्पीकर्स फ्री हो जाएंगे. जी और फिर हम कुछ चर्चा करते रहेंगे. बस हम अनुरोध करेंगे आयुषी सचदेव चोपड़ा जी से, जो भारतीय विद्यापीठ के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड है, कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें और हमारे आज के तीनों विशिष्ट अतिथियों को, जो हमारे वक्ता हैं, आज के एक्सपर्ट्स हैं, उनको ई मेमेंटो और सर्टिफिकेट वो भी प्रेजेंट करें.
और ये ई मेमेंटो सर्टिफिकेट आपको हम ईमेल पे या आपके व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे। आयुषी Thank जी। you, sir. Thank you so much, Sanjeev sir, for giving me the platform. Thank you is one such mighty prayer which says it all. Or on the occasion of this grand day, World Television Day, I mean, this is the best celebration of my life in so thoughtful manner, having so great dignitaries speaking so insightful and giving so insightful session to us, and it is undoubtedly a memorable one. इसी के लिए I want to like to give my regards and thanks to expert speakers Sri Nand Bhardwaj sir, Dr. Brajesh Kumar Singh sir, and Mr. Prabhakar Mishra sir, who has taken out the time and given us so insightful session. Sir, आप तीनों की कही हुई हर बात बहुत मान्यता थी और बहुत insightful session आपने हमारे students और हमारे बाकी audience को दिया. This is the one of the most memorable television day I have celebrated. इतने साल की मेरी journalism की journey में मुझे लगता ही नहीं है मैंने ये दिन कभी भी celebrate इस तरीके से करा होगा शायद. बस Facebook पे पढ़ लिया और celebration हो गया, like कर दिया. And this is the most thoughtful ways. For this, I would like to thank for giving the opportunity and give my gratitude to Professor Sanjeev Bhanawat sir and Professor M.N. Huda sir, जिन्होंने ये visualize करा and made this great flexible learning platform possible. Thank you so much, sir. Behind this, I have my team, Usha ma'am, Priyanka ma'am, Preeti ma'am, Pushpender sir, Jayant sir, without whom it has not been possible. So I thank you all and my dear participants and other dignitaries who have joined all around from the corner. Keep joining us, take insightful things from these learning sessions. Thank you to all of you. I request Priyanka ma'am to please present e-certificates to our dignitaries and expert speakers as a token of gratitude. So Nand Bhardwaj sir, this is a token of gratitude. Please accept the same from our end. We thank you. Prabhakar sir, we thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. थोड़े दिनों के बाद हमें ये सर्टिफिकेट और मेमेंटो याद दिलाएगी कि जब वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो हम भी पूरे देश से अलग अलग कोने से जुड़े थे. मैं जमशेदपुर से जुड़ा हूँ. I would like to give e-memento to all my experts, speakers and dignitaries. This makes this e-version more memorable. Thank you, sir. The same will be mailed to all the expert speakers for keeping up in their record and as a memory from our end. चलिए इस चर्चा को Thank you so much to all our normal speakers. Thank you. तो बस इस चर्चा को अपन यही समाप्त करते हैं और एक्सपर्ट्स अब ये हमारा जो रूम है इसको लीव कर सकते हैं. जो सर्टिफिकेट्स की वेट कर रहे हैं वो रुके, जिन्हें सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं वो भी अब लीव कर सकते हैं. और प्रियंका जी, नमस्ते. हाँ साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने अपने विचार शेयर किए. थैंक यू सर. हमेशा की तरह बहुत बढ़िया. धन्यवाद जी. बहुत. प्रियंका जी ये रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दें. Dear participants, you are requested to please generate your certificate of participation